ہمیں ایک بار پھر یہ موقع دیا، فضل دیا کہ ہم اس کے پاک چرنوں میں جھک کر اس کی شکر گزاری کر سکیں۔ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں سے انسان 19ویں باب کی 17ویں آیت جو ہے وہ تلاوت کی گئی ہے، جہاں پر لکھا ہے جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے، وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ پاک اور مقدس کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرنا۔ ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہماری دو طرح کی ذمہ داریاں ہم پر لاگو ہوتی ہے۔ ایک ذمہ داری ہے روحانی ذمہ داریاں، دوسری ذمہ داریاں ہیں سماجی ذمہ داریاں۔ اور روحانی سے مراد کیا ہے، اس کو میں آج تھوڑے سے وقت میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ جیسے ہم ایگزامپل دے رہا ہوں، ایگزامپل کے طور پر آپ دیکھیں کہ مسلم لوگوں میں 3 طرح کے دینے کے طریقے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، 2.5% ہوتا ہے، وہ اینولی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خیرات دیتے ہیں وہ لوگ، اور پھر ایک تیسرا حصہ ہے جسے فطرہ کہا جاتا ہے۔ یہ 3 طرح سے وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکالتے ہیں اور اسے اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے اسے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں بھی 3 طریقہ کار یا 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جسے بائبل مقدس میں ایماندار ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو ایسا کرنا لازم و ملزوم ہے۔ نمبر 1 جسے پرانے عہد نامہ میں بھی بیان کیا گیا، جسے دھیرے کی کہا جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 ہدیہ کہا جاتا ہے، اور نمبر 3 جو ہے وہ اسے شکر گزاری کی قربانی کہا جاتا ہے۔ ابھی جو روحانی ذمہ داریاں ہیں ہماری، جب ہم دہنے کی دیتے ہیں خداوند کے گھر میں یا ہدیہ دیتے ہیں خداوند کے گھر میں، تو وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ اصل میں وہ چرچ کے انتظامات کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ تمام طرح اخراجات جو چرچ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان سب کو پورا کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ بہت ساری جگہوں پر ریٹ پر لیا ہوتا ہے انہوں نے پریمائسز کو، جیسے کہ بجلی کا بل آتا ہے، گیس کا بل آتا ہے، اور ڈیفرنٹ طریقوں سے اخراجات پائے جاتے ہیں۔ وہاں پر کچھ بڑے چرچز ہوتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ایک ہیلپر بھی رکھا ہوتا ہے جو صفائی کرتا ہے، جو دیگر کام کرتا ہے۔ تو ان سارے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وہ ان پیسوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 اس میں سے پاسبان کی ضروریات کو بھی پورا کیا جاتا ہے۔ جو اس چرچ کا پاسبان ہوتا ہے، جو 24 گھنٹے یا فل ٹائم خداوند کی خدمت میں سرو کرتے ہیں، جن کا اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا، ان کے لیے کلیسیا جو ہے وہ انہی پیسوں میں سے ان کی مدد کرتی ہے۔ یہ ایک دوسرا روحانی ذمہ داریوں میں میری اور آپ کی پایا جاتا ہے۔ نمبر 3 اس پیسے کو بشارتی کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بشارتی کام سے کیا مراد ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بڑے پروگرام ہوتے ہیں، کوئی کروسیڈ ہوتا ہے، کوئی کنونشن ہوتی ہے، کوئی سیمینار ہوتا ہے، جس میں صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ انجیل کی خوشخبری کے پیغام کو پھیلایا جائے۔ ان کو اس کام کو بھی اسی دیکی اور ہدیہ میں سے کیا جاتا ہے۔ ابھی جو ہماری سماجی طور پر ذمہ داریاں ہیں، اخلاقی طور پر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جنہیں ہم بائبل مقدس سے ایک خاص لفظ دیتی ہے نیک کام کرنا، ٹھیک ہے، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں تک پہنچتی ہیں بائبل مقدس کے مطابق؟ سب سے پہلے جو
है समाजी तौर पर, वो है माँ बाप, जिनका सबसे पहला हक आप पर और आपकी तमाम तर रिसोर्सेज के ऊपर होता है। यानी कि माँ बाप सबसे पहले हैं कि आप उनकी खिदमत करें, उनकी जरूरियात को पूरा करें, और खुदावंद आपको उसके वसीला से बरकत देता है। नंबर 2, ये समाजी तौर पर जो हम हेल्प करते हैं उसके बारे में बाइबल मुकद्दस की रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं मुख्तसर तौर पर। नंबर 2 जो है वो आपके बहन भाई हैं, जिनकी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आप मदद कर सकते हैं। अगर आपको खुदा ने साहिबे दौलत बनाया है, खुदा ने साहिबे इख्तियार बनाया है, खुदावंद ने आपको रिस्क और दौलत अता की है, तो उस पर दूसरे नंबर पर जो जिसका हिस्सा बनता है वो बहन भाई है। मेरे साथ मिलकर एक हवाला निकालिएगा नए आदमों में से पहला यूहन्ना का खत, उसका 3 बाब, उसकी 17वीं से 19वीं आयत तक खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया पहला खत, उसका 3 बाब 17वीं से 19वीं आयत। निकाल लिया है आपने? मैं तलावत करूंगा, गौर से सुनिएगा। लिखा है, जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरेक करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। ऐ बच्चों, हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिया से भी मोहब्बत करें। यहां पर खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम जो हमें ये सिखाता है कि जिस किसी के पास दुनिया का मालो दौलत है और उसका भाई अगर मोहताज है, तो दूसरे नंबर पर उसकी जिम्मेदारी है कि किसी की भी हेल्प करने से पहले अपने बहन भाइयों की तरफ देखें। आमतौर पर क्या होता है कि हम मदद करते हैं बहुत सारे गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और यतीमों की, लेकिन हमारा अपना घर जो है वो कभी कभी छूट जाता है और खुदा हमसे ये सवाल पूछेगा। हम छोटे थे, उम्मीद है आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, एक सबक था हमारा, उससे कहते थे हकूक अल्लाह और हकूक अल-बाल, कि हमारी खुदा से मुतल्लिक क्या जिम्मेदारियां हैं और हमारी समाजी तौर पर हकूकुल बाल के अंदर क्या जिम्मेदारियां पाई जाती हैं। और तीसरे नंबर पर जिन लोगों का हमारे माल और दौलत के ऊपर, रुपए पैसे के ऊपर, अगर खुदावंद ने हमें साहिब इख्तियार बनाया है, दुनिया की ये दौलत अता की है, तो तीसरे नंबर पर उस पर हक है बेवा और यतीम बच्चों का। चौथे नंबर पर उसी से मिलता जुलता एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मस्कीन, क्योंकि आज जो हमने आयत तलावत की है उसमें क्या पढ़ा है, जो कोई मस्कीनों पर रहम करता है वो खुदावंद को क्या करता है, कर्ज देता है। यहां पर गौर कीजिएगा, सबसे पहले हमने ये देखना कि मस्कीन कौन है। हमें थोड़ा सा गौर भी करना है, सोचना भी है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे मांगने वाले हैं, बहुत सारे वो मुस्तहिक नहीं होते, वो प्रोफेशनल होते हैं, उन्होंने एक ढोंग रचाया होता है पैसे बटोरने का। हमने अपने पैसे को बड़ी अच्छी जगह पर इस्तेमाल करना है ताकि उस पैसे से खुदा हमसे खुश हो। और मस्कीन से क्या मुराद है? मस्कीन से मुराद कोई भी गरीब हो सकता है, कोई भी जरूरतमंद हो सकता है, कोई भी हाजतमंद हो सकता है, जिसे इंग्लिश में हम पुअर कहते हैं। और अभी बेटे ने तलावत की है, स्पेनिश में उसे पोब्रे कहा गया है। जो भी शख्स मुस्तहिक है, गरीब है, यतीम है, और वो भी सबसे पहले आपने कहां से शुरू करना है? सबसे पहले आपने देखना है आपकी कलीसिया के अंदर कोई ऐसा शख्स तो नहीं पाया जाता जो कि कोई मुस्तहिक है। हम दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो और हमारी अपनी
कलीसिया में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हो जिन्हें वाकई ही जरूरत हो, लेकिन व्हाइट कॉलर होने की वजह से वो बयान नहीं करते, अपनी मजबूरी बता नहीं सकते, क्योंकि इज्जत नफ्स होती है जिसकी वजह से इंसान उसे बयान नहीं कर पाता। तो मैंने और आपने ये देखना है कि हम उन लोगों की सबसे पहले मदद करें। उसके अलावा अपने पड़ोसियों से हमने शुरू करना है, और फिर एक इलाके, फिर शहर, फिर मुल्क आता है। इस तरह से आगे हमने बढ़ना है। एक अरसा दराज से हम लोग पाकिस्तान में क्रिसमस के मौका पर, ईस्टर के मौका पर, और अभी तो हमारे बुजुर्ग बिशप साहब जो हैं वो उन्होंने स्पेशली एक काम किया हुआ है, जैसे चर्च के अंदर एक बॉक्स रखा होता है चंदे का, उन्होंने स्पेशली वो 12 महीने के लिए वो बॉक्स रख दिया और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये बेवाओं और यतीम लोगों के लिए है। जो भी शख्स चर्च में आता है उसके अंदर हदिया डालता रहता है। जैसे ही कोई इवेंट बड़ा आता है उसे खोला जाता है और कलीसिया को पहले बताया जाता है, और कलीसिया जो है वो सब मिलकर जो है वो उस नेक काम में अपना हिस्सा डालती है। और फिर सबसे पहले हम क्या करते कि अपनी जितने भी कलीसियाएं हैं उनमें से देखते कि कौन कौन बेवा है, कौन कौन यतीम बच्चे हैं, कौन कौन मुस्तहकीन हैं, उन सबको पूरी कलीसियाओं में से जमा करते। और फिर डिपेंड करता है कि कमेटी क्या फैसला करती है, क्या है इनको कैश देना चाहिए, राशन लेकर देना चाहिए, कपड़े लेकर देने चाहिए, या जैसे भी मुतफक्का तौर पर फैसला किया जाता उनकी मदद की जाती। और यहां पर बताने से मुराद क्या है? जो आयत हमने पढ़ी है कि खुदावंद क्या कहता है कि जो कोई मस्कीन की मदद करता है, उस पर रहम करता है, वो खुदावंद को क्या करता है? कर्ज देता है। इसका मतलब आप समझते हैं, ये बड़ी खूबसूरत बात है, और ये वो एक बात है जिसको अरसा दराज से मैं अपने दिल से लगाए बैठा हूं। मिसाल के तौर पर आप किसी बैंक से कर्जा लेते हैं, क्या आप बैंक का कर्जा खा सकते हैं? नहीं। उनके पास आपके बैंक से मुताल्लिक सारे इख्तियारात मौजूद हैं। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आएंगे वो डेबिट कर देंगे आपके अकाउंट को। क्या आप किसी शख्स से कर्ज लेकर खा सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो शख्स आपको कर्ज देता है वो उसके इवज में कोई ना कोई सिक्योरिटी भी रखता है। आप सूदखोरों के बारे में जानते हैं, वो पहले सोना रख लेते हैं, या उनकी सैलरी की चेकबुक की रख लेते हैं अपने पास, या फिर उनके प्रॉपर्टी के पेपर्स रख लेते हैं, और फिर उसके इवज में जो है वो उनको पैसे देते हैं। बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है कि कोई शख्स भी किसी का कर्ज जो है वो नहीं खा सकता। और यहां पर क्या लिखा है कि अगर हम नेक काम करते हैं, गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मुस्तहकीन की, हाजतमंद लोगों की मदद करते हैं, तो हम खुदा को क्या कर रहे हैं? कर्ज दे रहे हैं। और जब एक इंसान किसी के पैसे नहीं खा सकता तो खुदा हमारी उस नेकी का, और खुदावंद ने कहा कि जो कोई मस्कीन पर रहम करता है, और रहम करने से क्या मुराद है? मुझे वो बात खुदावंद की याद आई कि जब लोग जौक दर जौक मसीह यीशु के पीछे आते तो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद को उन्हें देखकर तरस आता था कि ये उन भेड़ों की मानिंद है जिनका कोई चरवाहा नहीं है। वो बीमारियों में मुब्तला है, तरह तरह की बदरों गिरफ्ता बीमारियों में मुब्तला है, और इतने परेशान लोग और खुदावंद के पीछे पीछे चलते रहे। और मैंने और आपने देखना है कि कलाम खुदा क्या फरमाता है कि अगर हम मस्कीनों पर रहम करते हैं तो खुदावंद क्या फरमाता है? रहम करो ताकि तुम पर भी रहम किया जाए, मुआफ करो ताकि तुम्हें भी मुआफ किया जाए। अगर मैं किसी के दर्द को अपना दर्द समझता हूं, रहम करने से मुराद यही है कि बेशक जिस्मानी तौर पर उस शख्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन सिर्फ हम महसूस कर रहे हैं कि ये शख्स मुस्तहिक है, जरूरतमंद है, परेशान है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और उस वक्त तक आप किसी की मदद नहीं कर सकते जब तक आपके दिल से ये आवाज ना उठे
जब तक खुदावंद की तरफ से ये आपको बोझ ना दिया जाए। और जब आप ऐसा करते हैं तो फिर खुदावंद का पाक कलाम ये फरमाता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो वो शख्स अपनी नेकी का बदला पाएगा। अभी यहां पर एक बात बताना नहायत जरूरी समझता हूं। खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में लिखा है कि जब तू नेक काम करता है तो तेरा दायां हाथ अगर करता है तो बाएं को पता ना चले, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि इसको नहायत ही जो है वो पोशीदगी में तुमने ये काम करना है, ताकि तुम्हारा बाप जो है आसमान पर देखकर तुम्हें अजर और उसका सिला देगा, उसकी बरकत देगा। क्योंकि यहूदी लोग क्या करते हैं, अगर किसी की मदद करते तो इलाके के चौक के अंदर जाकर ऊंची जगह पर खड़े होकर ढोल बजाते और वो बताते कि लोगों आ जाओ हम मदद करने लगे हैं। तो खुदावंद कहता है अगर तुम लोगों को दिखाने के लिए अगर किसी की मदद करते हो तो मेरे पास तुम्हारा अजर नहीं है। अजर किसके पास है? खुदावंद के पास। और फिर मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स भूखा है, उसने कई रोज से खाना नहीं खाया पेट भर के, और आप उससे ये कहें कि खुदावंद जो है वो आपसे मोहब्बत रखता है, तो आपका क्या ख्याल है? वो आपकी बात पर यकीन करेगा? नहीं। लेकिन उसका दूसरा तरीका क्या है? आप उस शख्स को पकड़ते हैं, अपने घर पर लेकर आते हैं, आप उसे मिलाते धुलाते अच्छे कपड़े पहनाते हैं, सबसे पहले आप उसे खाना देते हैं। वो खाना खाएगा, उसका पेट भरेगा, और फिर अगर आप उससे कहते हैं कि खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है, तो वो आपकी बात का क्या करेगा? यकीन करेगा। वजह क्या है? क्योंकि वो ये देखेगा कि जब ये शख्स जो मुझे नहीं जानता इस कदर मुझसे मोहब्बत रखता है, तो जिसका ये तस्करा कर रहा है वो बेशक मुझसे मोहब्बत करता होगा। वजह क्या है? हम प्रैक्टिकली तौर पर जब कुछ करके दिखाते हैं तो फिर उस बात का असर जो है वो ज्यादा देर का होता है। आप जानते हैं नेक सामरी का वाकया बड़ी खूबसूरत तरीके से बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक शख्स जो डाकुओं में गिर गया था, वहां से हैकल का सरदार काहिन भी गुजरा, वहां से लावी भी गुजरा, बड़े रास्तबाज लोग गुजरे, लेकिन किसी ने उसकी मदद ना की। कौन गुजरा? एक सामरी जिससे सब लोग नफरत करते थे। क्या सामरी उस शख्स का रिश्तेदार था? नहीं। उसने क्या किया? उसको लिया, अपने गधे पर बिठाया, सिराहे में लेकर गया, मोटल या होटल के अंदर लेकर गया, वहां पर जाकर उसे रखा और उससे उसकी तीमारदारी की, उसके जख्मों को साफ किया, मरहम और पट्टी की, और सिराहे के मालिक से क्या कहता है कि तू इसका ख्याल रखना, ये पैसे रख ले अपने पास, और बाकी जो आएंगे वो मैं तुझे बाद में दे दूंगा। ये है वो नेकी जो खुदावंद मुझसे और आपसे चाहता है कि जिस शख्स को हम नहीं जानते। और फिर मैं आज आपको इसके हवाले से ये बात बताना चाहता हूं, खुदावंद ने अगर आपको लाखों रुपए दिए हैं, आपके पास बेशुमार दौलत है, लेकिन कभी आप किसी अंधे शख्स को रोड क्रॉस करवाए और आप देखें आपके दिल के अंदर कितना इत्मीनान और खुशी महसूस करेंगे। कभी किसी बीमार शख्स को जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसके पास पैसे नहीं है और वो पैसे ना होने की वजह से मर रहा है, और आप जाकर उसका बिल अदा करें और उसके चेहरे पर जो खुशी होगी और उसके दिल से जो दुआ निकलेगी, उसका अंदाजा आप पैसों से नहीं लगा सकते। कभी एक शख्स को जो भूखा और प्यासा है उसको खाना खिलाकर देखें और देखें जो खुशी आपके अंदर और इत्मीनान आपके अंदर आएगा, उसका बयान से बाहर है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरीकों से खुदावंद ने लोगों को बोझ दिया है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मुस्तहिक बच्चों को उनकी मंथली फीस जो है वो स्कूलों में दिया करते हैं और एक लंबे अरसे तक उनकी फीसें अदा करते रहते हैं ताकि ये किसी काबिल बन जाए। इनके माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, वो
ऐसे समाजी काम करते हैं, वेलफेयर के काम करते हैं। और देखें, मैं और आप पुराने अहदनामे में क्या कहा गया, बड़ी खूबसूरत तालीम है इसके बारे में, परदेशियों के बारे में, यतीमों के बारे में, बेवाओं के बारे में। खुदावंद ने कहा कि जब तुम अपने खेतों की कटाई करते हो तो उसको बिल्कुल सिरे से रखकर नहीं कटाई कर देना, उसकी बातें कुछ रहने देना। अंगूरों का खेत काटते हो तो उसको बिल्कुल सिरे से खत्म नहीं कर देना, कुछ हिस्सा रहने दिया करो, ताकि जो परदेसी वहां से गुजरते हैं, जो यतीम और बेवाएं मूल लेकर उसे नहीं खा सकते, वो तुम्हारे खेत में से लेकर खाएं। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में एक इससे भी बड़ा, वो क्या था? खुदावंद ने कहा कि 6 साल तक तुम अपनी जमीन को जो है उसकी पैदावार खाते रहो, 6 साल तक। 7वें दिन चूंकि आराम का दिन है, 7वें साल तुमने अपनी जमीन में पैदावार नहीं करनी, उसमें जो उगता है उसे उगने दो, उसे रोको नहीं, लेकिन उस 7वें साल का जो हिस्सा होगा वो तुम्हारा नहीं है, वो गरीबों, यतीमों, बेवाओं और परदेशियों का है, जो वहां से गुजरेंगे वो अपना पेट भरेंगे उससे, उनके लिए तुम छोड़ देना। और 7वें साल में तुम उस खेत में पैदावार ना करना। आप देखें, 5000 की तादाद में लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास हैं। खुदावंद कहते हैं अपने घरों में जाओ और खाना खाओ, नहीं, खुदावंद ने खुद कदम बढ़ाया और उनसे कहा शागिर्दों से, तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो, और उन्होंने असुदा होकर खाया पिया। और आज बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुझे और आपको देखना है कि इब्तदाई कलीसिया भी ऐसा ही करती थी। एक मेरे साथ मिलकर एक हवाला निकालिएगा, ईमान 6 बाब की पहली आयत, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि जो सोशल वर्क हम कर रहे हैं ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है। ईमान 6 बाब की पहली आयत, जी तलावत कीजिएगा, पढ़िएगा। उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माय यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोजाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें। पास्टर भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों, कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। यहाँ पर देखें, ये इब्तदाई कलीसिया है, ये रसूल हैं। हुआ क्या था असल में? सब लोगों ने जब अपनी जायदादें बेची तो वो लाकर रसूलों के कदमों में उन्होंने रख दी। अभी होता क्या था कि रसूल हर एक शख्स की जरूरत के मुताबिक उनकी एहतियाजें रफा करते थे उन पैसों में से, और खुद अंजील की बशारत का काम करते। कुछ लोगों ने जो है ये एक सवाल लेकर आए कि हमारी जो बेवाएं हैं उनकी मदद अच्छी तरह से नहीं हो रही। तो बुजुर्ग पतरस ने क्या कहा कि मैं और मेरे दूसरे साथी जो हैं वो हम अंजील की मनादी करेंगे, खुशखबरी के पैगाम को सुनाएंगे, लेकिन हम बेवाओं की मदद के लिए 7 नेक नाम लोग जो हैं वो चुनेंगे जो स्पेशली उनकी मदद करें। उनमें 2 नाम बहुत ही फेमस हैं, जिसे बुजुर्ग स्टिफनस कहा गया, इसे भी डीकन मुकर्रर किया गया। इसे बुजुर्ग फिलिपस जो है उसे भी डीकन मुकर्रर किया गया। और डीकन का काम यही है कि इमदादी कामों में मदद और रहनुमाई करे, मैनेजमेंट के काम को देखे। और आप देखें कि इब्तदाई कलीसिया भी जो है वो अपने उन रुपयों पैसों में से बेवाओं की, यतीमों की मदद करते, जो आज मैं और आप भी करने जा रहे हैं। और ये बाइबल मुकद्दस के ऐन मुताबिक है। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से बुजुर्ग एलिया के बारे में आप देखें, दूसरे सलातीन में ये वाकया दर्ज है कि बुजुर्ग एलिया ने जब ये कहा, दुआ की और 3.5 बरस तक आसमान बंद हो गया और बारिश ना बरसी, शहर में काल और कहत है। खुदावंद ने कहा बुजुर्ग एलिया से, तो सारपत की बेवा के पास चला जा
मैंने वहां पर उससे बेवा को तेरे लिए तैयार किया हुआ है कि वो तेरी देख रेख करे, तेरी जरूरियात को पूरा करे। जब वो सारपत के इलाका में जाता है तो वहां पर जंगल में एक बेवा उसे मिलती है और उसका एक बेटा, वो लकड़ियां चुन रहे होते हैं। बुजुर्ग एलिया उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, क्या औरत, मुझे पानी का गिलास तो पिला। वो पानी लेने जाती है अपने घर को। बुजुर्ग एलिया कहते हैं, साथ में एक रोटी का टुकड़ा भी लेते आना मेरे लिए। वो कह रही है कि खुदावंद की हयात की कसम, मेरे पास एक पेड़ा आटा है, अभी लकड़ियां चुन रही हूं, इसे मैं और मेरा बेटा बनाएंगे, खाएंगे और फिर उसके बाद मर जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चीज नहीं है। बुजुर्ग एलिया क्या कहते हैं, जैसा मैं तुझसे कहता हूं पहले मेरे लिए बनाकर लेकर आ। उसके जहन में आया होगा, एक रोटी खा के भी बाद में मरना है तो बगैर खाए मर जाती हूं, मरने खुदा को तो दूं। उसने वो अपने हिस्से की रोटी मर्दे खुदा के लिए बनाई और लेकर आ गई। मर्दे खुदा ने जब उस रोटी को खाया, पानी को पिया और उससे कहा कि इन 3.5 वर्षों में ना तेरी मटकी में से आटा और ना तेरी कुप्पी में से कभी तेल खत्म होगा, और ना सिर्फ तू, ना तेरा बेटा, बल्कि तेरा पूरा कुंबा जो है वो उसमें से खाएगा। और खुदावंद का पाक कलाम हमें ये बताता है कि 3.5 साल तक उनके पास ना आटे की कमी, ना तेल की कमी, और उनका पूरा कुंबा उस बेवा का जो है वो खाता रहा, सिर्फ इस वजह से कि उसने मर्दे खुदा की बात को माना। मैं और आप भी देखें, हम जिस हद तक हो सकता है, किसी शख्स ने मुझसे भी ये बात कही कि पैसा आप जो है वो ना सैलरी लेते हैं, ना आप हदिया लेते हैं, ये क्या वजह है इसकी? मैंने कहा देखिए, बेशक बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये मेरा हक है और मैं इसे दे सकता हूं, ठीक है, लेकिन खुदावंद के पाक कलाम में एक आयत लिखी है कि अपना माल कहां जमा कर? आसमान पर। ये तो मैं ले लूंगा, खा लूंगा, खत्म हो जाएगा, थोड़ा माल ऊपर भी तो जमा होना चाहिए। यहां पर खुदावंद ने मुझे दिया है सरवाइव करने के लिए, थोड़ा माल आगे ट्रांसफर कर दे, आगे भेज दे, क्योंकि वहां ना कीड़ा लगता है, ना जंग लगता है, ना कोई चोर चुरा सकता है। और मैंने और आपने ये जो हेल्पिंग वर्क शुरू किया है, लोगों की मदद करना शुरू किया है, ये माल भी हम कहां पर जमा कर रहे हैं? आसमान पर। और इसका अजर और सिला किसी इंसान ने आपको नहीं देना, ये खुदा देगा। और आपके खत्ते हमेशा नई नए से लबरेज रहेंगे, और यकीन जाने कि खुदावंद इसके इवज में आपके लिए, मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए बरकतों के बड़े दरवाजों को खोलेगा। और हम इस काम को हमेशा अपने खानदानों में, अपने बच्चों में डेवलप करते रहें, उन्हें सिखाते रहें, ताकि देना जो है वो लेने से ज्यादा मुबारक है। खुदावंद मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।